চলা আজকের দিনে খুব জরুরি। তার কারণ তার কারণ যে এই আইকা যেভাবে সবার ওয়েলথটাকে মেনটেন করে, ঠিক সাইমেন্টেনিয়াসলি হেলথটাকেও কিন্তু আজকের দিনে টেক কেয়ার করা খুব জরুরি। সেই টেক কেয়ার করার জায়গাটার জন্যই কিন্তু উই আর দ্য পার্টনার অফ, মানে হেলথ পার্টনার অফ আইকা। মূলত আমাদের হসপিটালের ব্যাঙ্গালোর বেস আমাদের একটি হসপিটাল। এই হসপিটাল নারায়ণা হৃদয়ালয়, ডক্টর দেবী শেট্টির তৈরি করা হসপিটাল। কিন্তু আমরা সবাই চিনি আরেনটেগো হসপিটালকে খুব সহজেই। আমাদের যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল আরেনটেগো হসপিটালকে চিনে থাকি। এছাড়া আমাদের কলকাতাতে আরো দুটো ইউনিট এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল। দ্যাট ইজ নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল, হাওড়া। আমরা এই কারণেই নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাওড়ার কথাটা বলছি, কারণ আরএন টেগোরের যে পরিমাণ ক্রাউড এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল, মানে রয়েছে, সেখান থেকে সেম ফেসিলিটিস কিন্তু নারায়ণা সুপার স্পেশালিটি হাওড়া ইউনিটে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। পাশাপাশি আমাদের আরো একটা ইউনিট আছে, যেটা হচ্ছে নারায়ণা মাল্টি স্পেশালিটি, এটাও হাওড়া চুনাবাটিতে রয়েছে। এবার আমাদের এই হসপিটালগুলোতে মূলত যে জায়গাগুলো নিয়ে কাজ হয়, আজকের দিনে ক্যান্সার একটা মহামারীর আকার ধারণ করেছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা মনে করেছি যে সাধারণ মানুষের কাছে যদি পৌঁছাতে হয়, খুব ন্যূনতম মূল্যে যদি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়, সেটা কিন্তু সবসময় খুব, মানে একটা বড় মানুষকে আমরা রিচ করতে পারবো। এবং আমরা সেটাই আজকে করছি। কিন্তু আমরা আরো অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাতেও পারছি। তার জন্য থ্যাঙ্কস টু, কেননা আইকার মাধ্যমে আমরা অনেক সুযোগ পেয়েছি, অনেক এমন এমন সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, অনেক মরণাপন্ন রুগীকে আমরা কিন্তু বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছি। যেটাই কিছুদিন আগেই আমরা বলছিলাম, সেদিনকে শিলিগুড়িতে আমাদের যে মিটিংটা হলো, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং আহ কোচবিহারে, এই তিনটে জায়গাতেই আমি ছিলাম। আপনাদের অনেক মেম্বারদের সাথে আমার মানে ইন্টারাকশন করার সুযোগ হয়েছে। বেশ কিছু আমরা ইন্টারেস্টিং জিনিস, এটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে একে অপরের থেকে শিখি। আমিও সেদিনের মিটিং এ বসে আপনাদের ওখান থেকে অনেক কিছু শিখছিলাম। সেরকম ভাবে আপনাদেরও, যে আইকার যে আমাদের বাদ বাকি সদস্য যারা ছিলেন, তারাও হেলথ সেক্টর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানছিল। আমাদের মূলত আমরা চাই যে এমার্জেন্সির সময়, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এমার্জেন্সির সময় একটা হেলথ পার্টনার থাকা খুব খুব জরুরি। তার কারণ আমরা তো লেম্যান, সাধারণত যারা লেম্যান, তারা বুঝতে পারে না প্রবলেমটা হচ্ছে এবং এই প্রবলেমটাকে কতটা সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার। আমরা অনেক কিছুকেই খুব হালকা মেজাজে নিই, কিন্তু সেটা যখন বড় আকার ধারণ করে তখন অনেকটাই আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে এবং সব বিষয়টাই অনেক বড় জায়গায় পৌঁছে যায়। তো সেই জায়গাটাকে মিনিমাইজ করা বা ছোট করার জন্যই কিন্তু আজকে আমার এখানে মানে উপস্থিতি। এবং আমাদের সাথে আজকে ডক্টর নিশিত পি গুপ্তাও রয়েছেন। উনি বলবেন, উনি অঙ্কোলজির একটা বড় অংশ, মানে ক্যান্সারের একটা বড় অংশ, উনি কি করা উচিত, কোন জায়গা থেকে আমরা কিভাবে বুঝবো, হোয়াট আর দ্য ট্রিগার পয়েন্ট, সেগুলো উনি কিন্তু আমাদের আলোচনার মধ্যে উঠে আসবে। কারণ এমন একটা দিনে আমরা আলোচনা করছি, যে দিনটা হচ্ছে, আমরা সবাই জানি, ডক্টরস ডে হিসেবে পালন করি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে থ্যাঙ্কস টু আইকা, যে এইরকম একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য, যেখানে আমরা যেমন ডাক্তারবাবুদের সম্মান দিতে পারবো, ঠিক সেরকম ভাবে সাধারণ মানুষ, অনেক সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারবো। এবার যেটা প্রশ্ন হলো, এমার্জেন্সি, ইন টাইম অফ এমার্জেন্সি আমরা কি করব? আমার ফোন নাম্বার গৌতমদার কাছে আছে এবং আপনাদের অনেক সদস্যের কাছে আছে, এবং বেশ কিছু গ্রুপেও আমাকে, আপনাদের গ্রুপে আমি অ্যাড হয়ে আছি। সেই গ্রুপে, নীলোৎপল, আমি নীলোৎপল এখানে হ্যাঁ চ্যাট বক্সে আরেকবার নাম, ফোন নাম্বার দিয়ে দেবে, সেটা যাতে সার্কুলেট হয়ে যায়। এই চ্যাট হ্যাঁ বক্সে দিয়ে দিয়ে দেবো। দিলে হবে, চ্যাট বক্সে দিয়ে দিলে সেটা ঠিক আছে, ঠিক হয়ে যাবে। তো আমি ঠিক ঠিক। নীলোৎপল, এখানে আমি আরেকটু বলি ডাক্তারবাবু আসার আগে, যে আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, যে প্রতিটা ঘরে এমন এমন সমস্যায় তারা রয়েছে, তারা অনেকে জানতে পারছে, অনেকে জানতে পারছে না। একটা প্রবাদ আছে যেটা আমরা সবাই মুখে বলি, কিন্তু সেটা আমরা কাজে করি না। সেটা হচ্ছে প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। তাই তো? প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর মানে আমরা রোগটা হবার পরে সেইটা নিয়ে আলাপ আলোচনা করা বা সেটা চিকিৎসা করার চেয়ে, রোগটা যাতে না হয় সেটা যদি আমরা
প্রিভেন্ট করতে পারি আগে থেকে, তাহলে আমরা অনেক মানুষ বা অনেক পরিবার বেঁচে যায়, তাই তো নীলোৎপল? একদম তাই। এবং সবচেয়ে বড় একদম কথা তাই। বলি, সবচেয়ে বড় কথা বলি, আজকের দিনেও ক্যান্সার এই শব্দটা যখন কেউ কোনো পরিবারে উচ্চারিত হয়, হঠাৎ করে যদি শোনে যে তার পরিবারে কোনো ব্যক্তির ক্যান্সার নামক একটা ব্যাধি তার পরিবারে এসছে, সমস্ত পরিবারটা সেই মুহূর্তের মধ্যে একটা সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা যা পরিস্থিতি তৈরি হয় যে তার পরিবারটা বোধহয় ধ্বংস একটা হতে চলেছে, অন্ধকারের ছায়া নেমে আসে একদম। মানে ধ্বংস হতে হুম হুম। চলেছে। এবং তারা তখন এক কথায় দিশাহারা। যদি পরিবারের সে মধ্যমণি হয়, যে রুজি রোজগার যার যার ইনকামে পুরো পরিবারটা বেঁচে থাকে, সেই লোকেরই যদি এরম ধরনের ঘটনা ঘটে, বা যে পরিবারের পুরো পরিবারটাকে হাল ধরে রাখে, সেই তার যদি এরম ঘটনা ঘটে, তখন পুরো পরিবারটা শেষ হয়ে যাবার পথে, এবং তারা মনে ভাবে যে আমরা পুরো শেষই হয়ে যাব, আমাদের জীবনের সব শেষ, পরিবারটা সব শেষ। কিন্তু আজকে অত্যাধুনিক যে চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়েছে, যা হয়েছে, সে যদি একটুখানি এই অ্যাওয়ারনেসটা যদি থাকে, তাহলে পরে তার পরিবারটা বেঁচে যাবে। যেটা আজকের ডেটে আমাদের যেমন আর্থিক অ্যাওয়ারনেসটা দিচ্ছি সব জায়গায়, তেমনি তাকে যদি এই অ্যাওয়ারনেসটা দেওয়া যায়, তাহলে পরে সেও কিন্তু সেভ হয়ে যায়। এটাই আমার মনে হয় যে আমরা এটা প্যারালালি এই কাজটা আমাদের প্রত্যেকেরই করা উচিত। আমরা মাঝে, যেহেতু আমরা ইন্টারমিডিয়েটারি কাজ করি, সেইজন্য আমাদের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগটা অনেক বেশি। প্রত্যেকটা মানুষের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়। সবার সাথে আমাদের যাই, প্রত্যেকটা পরিবারেই যত ক্লায়েন্ট আছে সবাই আমাদের পরিবারের মতো মানুষ। তাদেরকে সাহায্য করা, এইগুলোতে যদি আমরা একটা লোকের আ লাখ, লাখ ৳১,০০,০০০ ইনভেস্টমেন্ট যেমন করাবো, তেমনি যদি তাকে আ তার হেলথটাও যদি তাকে সাপোর্ট দেয়া যায় বা সেই পরিবারটাকে, আমার মনে হয় যে আ সেক্ষেত্রে তাদের সেই আ সেভিংসটা বা ইনভেস্টমেন্টটা তার কাজে লাগবে। আদারওয়াইজ যদি দেখা গেল যা টাকা তাকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট করালাম, তার বাড়িতে এমন একটা রোগের দেখা দিল বা যা হলো, তার সারা জীবনের রোজগারটা ওই আ এক ঝটকায় সমস্তটাই শেষ হয়ে গেল। তো আমার মনে হয় এইটা যদি আমরা এই কম্বিনেশনটা করতে পারি, উম ইনভেস্টমেন্টের সঙ্গে প্রিভেনশন অফ দ্য হেলথ। কারণ একটা কথাই আমরা আবার আরেকটা বাগধারা বলি, হেলথ ইজ ওয়েলথ। এইটা আমরা শুধু বইতে পড়ে এসেছি। কিন্তু বাস্তবে সেটা আমরা কাজে করছি না। আমরা কাজের জন্য দিনরাত না খেয়ে-দেয়ে, শরীরটা না ভেবে শুধু ওয়েলথ বানানোর চেষ্টা করছি। আর ওইদিকে ওয়েলথ বানাতে গিয়ে হেলথটাই চলে যাচ্ছে। যার ফলে কি হচ্ছে যে, যখন একটা মানুষের কাছে পর্যাপ্ত টাকা থাকছে, তার শরীর বলে আর কিছু থাকছে না। তাই এই ব্যালেন্সটা আমাদের করা এখন প্রয়োজন। তো নীলোৎপল, আমি তোমাকে আবার ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি এটাকে আরেকটু ভালো করে যদি বলো, তারপর ডাক্তারবাবুকে ৫ মিনিটের মধ্যে দিয়ে দাও। নীলোৎপল? একদম সঠিক কথা। যে হেলথ এবং ওয়েলথ, কারণ আজকে যে আমাদের প্ল্যায়ারটাও তৈরি হয়েছে সেখানেও আমরা বলছি যে আমরা একসাথে কাজ করব, এবং একসাথেই আমরা কিন্তু আজকের দিনে কাজ করতে শুরু করেছি। এবং হেলথকে যদি আমরা ওয়েলথ বানাতে গিয়ে হেলথকে নেগলেক্ট করি, সেক্ষেত্রে কিন্তু বড় সমস্যাই তৈরি করতে চলেছে। এই কারণেই আরো একটা চিন্তা ভাবনা আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আজকের দিনে, সেটা হচ্ছে যেটা একটা ভার্চুয়াল ব্লাড ব্যাংকের একটা প্রপোজাল গৌতম দার তরফ থেকেই প্রথমে এসেছিল, এবং আগামী দিনে সেটা আমরা হয়তো একসাথে হাতে হাত মিলিয়ে করার মতো জায়গাতেও পৌঁছাচ্ছি, এবং খুব শিগগিরই এটাকে আমরা লঞ্চ করব। অলরেডি আমরা কিন্তু এই ধরনের সার্ভিস দেওয়াও শুরু করেছি বেশ কিছু মানুষের, যখন আমাদেরই মানে ঘরের মানে এখন আমার মনে হয় যে আইকাটাও আমার একটা ফ্যামিলি আর কি। তো সেই ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে যখন কারো ক্রাইসিসটা তৈরি হচ্ছে, তখন আমার মনে হচ্ছে যে এদেরকে কিভাবে আমরা সাহায্য করতে পারি, এবং অলরেডি কিন্তু আমরা দুজনকে এই ধরনের সাহায্য করতে পেরেছি, এবং সেক্ষেত্রে তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা উপকৃতও হয়েছেন তারা। আমার মনে হয় গৌতম দা, এর বেশি এই মুহূর্তে আর খুব বড় করে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। পরবর্তীকালে যখন সুযোগ থাকবে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আরো বড় করে বলবো, কারণ আমাদের সাথে এখন ডাক্তারবাবু রয়েছেন। হ্যাঁ, এই হ্যাঁ। বিষয়গুলো আমার মনে হয় ডাক্তারবাবু অনেক মানে ক্যান্সারের জায়গাটা নিয়ে। তো আমি ডাক্তার আপনার সাথে ১ম এ
মানে প্রথমে আমি বলবো যে এই যে এটা আরেকবার মনে করিয়ে দেওয়া যে হঠাৎ যেটা বারবার যে হঠাৎ রাত 1টা 1:30 2টোর সময় কেউ ক্রাইসিস হলো, সেই মুহূর্তের যে তাকে আহ, সিদ্ধান্ত নেওয়াটা যে খুব অ্যাসিস্ট্যান্সের কঠিন হয়েছে, প্রয়োজন, হ্যাঁ। অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রয়োজন, সেইটা একটুখানি হ্যাঁ, বলার পরে ডাক্তারবাবুকে দাও। আচ্ছা। এইটা বলছি যে একদম সঠিক জিনিস গৌতম দা এখানে পয়েন্ট আউট করেছেন যে এরকম প্রচুর ঘটনা ঘটে। আর বিশেষ করে এই আমরা বলি যখন মানে সবার কাজ শেষ হয়ে যায়, হেলথ সেক্টরের কাজ কিন্তু ঠিক সেখান থেকে আরো বেশি করে তার দায়িত্বটা বেড়ে যায় এবং শুরু হয়। অর্থাৎ আমরা সারা দিনের পর যখন রাত্রি 9টা 10টা 11টায় আমরা সবাই বিশ্রামের জন্য যাই, ঠিক সেই সময় থেকেই কিন্তু আমাদের প্রচুর এমার্জেন্সি সিচুয়েশন প্রত্যেকটা মানে যখন পেশেন্টরা আসে আমরা ফিল করি আপ টু মানে মর্নিং মানে আর্লি মর্নিং। এই সময়টা খুব ভাইটাল টাইম না, ওই সময় অ্যাভেলেবেল থাকে একমাত্র হসপিটাল বা কোনো হেলথ সেন্টার ছাড়া বা নার্সিং হোম ছাড়া। এই সময় যদি কখনো কোনো রকম এমার্জেন্সি সিচুয়েশন তৈরি হয়, আমি চ্যাট বক্সে আমার নাম নাম্বার সব দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আমার নামটাকে সেভ করে, নাম এবং নাম্বার সেভ করে রাখবেন। শুধু একবার আপনাদের পরিচয় দেবেন, আপনারা আই কার্ড অমুক জায়গা থেকে বলছেন। বাকি দায়িত্ব আমার, বাকি দায়িত্ব নিয়ে আপনাদের কি সমস্যা হয়েছে, কি করতে হবে, প্রয়োজনে আমি এমার্জেন্সি ডাক্তারবাবু যার ডিউটিতে আছে তার সাথে কথা বলে প্রিলিমিনারি যেটুকু যা করে দেবার করে আমরা পেশেন্টকে ট্রান্সফার করে প্রয়োজনে আমরা গাড়ি পাঠিয়ে তুলে নিয়ে আসবো। এই সাপোর্ট কিন্তু আমরা দেব। মানে এটা আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। তো সেই জন্যই কিন্তু মানে সেই জায়গায় এই এই দায়িত্বটা আমি আজকে মানে এখান থেকে আইকার এই দায়িত্বটা আমারই সামলানো। তো আমি আমি এই দায়িত্বটা নিই এবং এটা নিয়ে থাকবো আর কি। এইটুকু বলা। আর প্রথম তো আমার মনে হচ্ছে না আর বেশি কিছু বলা ডাক্তারবাবু, কারণ এরপরে 9টা হুম, বাজতে চললো, ডাক্তারবাবুকেও ছাড়তে হবে, আমি ডাক্তারবাবুর কাছে চলে যাই। ঠিক আচ্ছা, আছে। সাথে রয়েছেন ফার্স্ট অফ অল ডাক্তারবাবু হ্যাপি ডক্টরস ডে। ইয়েস। Thank you. হ্যাপি হ্যাপি ডক্টরস ডে। Thank you. Thank you very much. স্যার এখানে আহ, যারা উপস্থিত আছেন এখনো পর্যন্ত, তারা প্রত্যেকেই আমরা যেমন হেলথ সেক্টরটাকে সামলাই না, এনারা প্রত্যেকেই আপনার আমার মতো এরকম সাধারণ মানুষদের ওয়েলফেয়ারটাকে সামলান। এবং এখানে ওকে। যে যারা এখানে উপস্থিত আছে আমি যতটুকুনি দেখতে পাচ্ছি, এখানে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, নদিয়া, হুগলি, হাওড়া, কলকাতা লোক আহ, আপাতত দেখতে পাচ্ছি এখানে যারা জয়েন করেছে। এতটা রেডিয়াসটা বললাম যে, এবং দিনহাটা, দিনহাটা রয়েছে অমিত জৈন, তো আলিপুরদুয়ারেও একজন আছে। প্রেজেন্টলি ডক্টর নিশিত গুপ্তা is with our Narayana Super Speciality Hospital. He is a specialist oncologist. মানে উনি বোন বা মানে অর্থোপেডিক যে এই ধরনের যে ক্যান্সার সমস্যাটা তৈরি হয়, এটা আমাদের কাছে একটা নতুন সাবজেক্ট। আমি এই জন্যই আজকে ডক্টর গুপ্তাকে আমাদের মধ্যে এনেছি যে ক্যান্সার তো আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক রকমের ক্যান্সারের কথা শুনেছি, বাট হঠাৎ করে আহ, অস্থিমজ্জা বা অস্থিতে কোনো ক্যান্সার যে হয় বা সেইটা কিভাবে আমরা বুঝতে পারবো সেই নিয়ে স্যারকে আমি রিকোয়েস্ট করবো। আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না, স্যার প্লিজ অ্যাড অন। Okay. Thank you, गौतम कर्माकर जी, नीलोत्पल जी। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार। तो शुरुआत में बोल दूं, मुझे बंगाली इतना अच्छे से आता नहीं, मैं समझ लेता हूँ, बोल नहीं नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मैं हिंदी आपसे में हिंदी बोलिए। में बात करूंगा क्योंकि कोई मुझे अभी कोई बंगाली सीखना है और बोलने का मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं है फिलहाल। तो बेसिकली मुझे नीलोत्पल जी ने बताया था कि आप लोगों के एसोसिएशन का एक हेल्थ टॉक देना है। तो आपने जो बोला वो सही बात है, हेल्थ इज एक्चुअली द वेल्थ। बिकॉज आप अगर लॉन्ग टर्म में देखिए, जितना आप इन्वेस्टमेंट अगर आप हेल्थ में करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वही आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, rather than whether you invest it in शेयर मार्केट और एवरीवेयर। बट जितना आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं उतना ही आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। तो आपने जो एक चीज बोली, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हर हेल्थ टॉपिक के लिए एक्चुअली मैंडेटरी है कि अगर आप प्रिवेंट कर सकते हैं कोई चीज को तो वो आपके लिए वाकई में आपके लिए फायदेमंद साबित होती है लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए जैसे अभी मेरा, क्योंकि मैं एक ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा जो सामना पड़ता है ज्यादा पेशेंट से वो है बोन कैंसर के। लेकिन जनरल आप देखें तो अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो बेसिकली आपको हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने पड़ेंगे। कैंसर में कुछ चीजें हैं
जो कुछ काफी कॉमन है, मतलब कुछ चीजें जो अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका कैंसर होने का खतरा कम रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हड्डी का कैंसर का हड्डी में ही पनपता है, कई बार बाकी जगह कैंसर रहते हैं वो भी हड्डी में आ जाते हैं, जैसे हेलो। लंग कैंसर हो गया, यस। प्रोस्टेट कैंसर हो हाँ। गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। तो इसीलिए अगर आप क्या इनको गो? प्रिवेंट कर सके हमने तो आप खुद आए। कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस विषय में अगर आपको बात करना है तो बेसिकली जैसे आप बाकी कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, वैसे ही आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो फिर वो अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि स्मोकिंग से, जैसे सरकार भी बोलती है, एवरीबडी नोज, ओरल कैंसर और लंग कैंसर का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो अगर आप टोबैको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं तो बेसिकली आप न्योता दे रहे हैं कैंसर को पनपने का। साथ में अगर आप अल्कोहल का भी सेवन कर रहे हैं तो उससे भी आपको लिवर कैंसर होने का खतरा लॉन्ग टर्म में ज्यादा रहता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचने के लिए अगर आप एक कुछ खराब आदतें हैं उन्हें आप छोड़ दें तो फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा। दूसरी बात, 40 ईयर्स के बाद मैंडेटरी है कि आप एटलीस्ट रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहें। जैसे मेल्स जो रहते हैं उन्हें प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर में से आता है। तो ये अगर आपको पहले ही पता चल जाए स्टार्टिंग स्टेज पे तो फिर वो मैनेज करना काफी आसान होता है। कोई भी बीमारी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर आप उसको पहले पकड़ लें तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर बीमारी लेट स्टेज में पकड़ी जाए तो इलाज डिफिकल्ट होता जाता है। तो वही बात कैंसर में भी अप्रूव है कि कैंसर अगर आप पहले पकड़ लें तो उसका इलाज काफी सिंपल रहता है। तो ये पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि ज्यादातर समय कैंसर जैसी बीमारी रहती है, जैसे बाकी बीमारी है, बीपी रहे, हाइपरटेंशन रहेगा, आपको डायबिटीज रहेगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आपको सिम्टम्स हो जाएंगे और वो काफी सीवियर रहेंगे। तो जब तक आपका बीमारी पकड़ा जाता है वो काफी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो कैंसर में वैसे ही रहता है। तो इसीलिए एक चीज जो आप कर सकते हैं वो है रेगुलर हेल्थ चेकअप, बेसिकली जिससे कि आपको एटलीस्ट आपका हेल्थ स्टेटस पता रहे और अगर कोई बीमारी पकड़ने की संभावना रहे तो वो हम जल्दी पकड़ सकें। दूसरी बात, हेल्दी हैबिट्स में आपको फॉलो करना है तो आपको वेट कंट्रोल, वेट रिडक्शन, हेल्दी डाइट, और आजकल जैसे अभी आप लोगों का आई थिंक हेल्थ लोगों को हेल्थ कॉन्शियस हो ही गए हैं, फिर भी जितना आप घर का खाना खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बाहर का खाने में आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि उसमें क्या डाला जा रहा है, क्या क्या यूज इस्तेमाल किया जा रहा है, उसमें कितना केमिकल है, क्योंकि केमिकल जो भी हैं वो प्रोन करते हैं आपको कैंसर डेवलप करने के लिए। तो अगर आप जितना आप हेल्दी खाना अपना घर का खा सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। अनअवॉइडेबल है तो उसमें भी आप अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आप केवल कैंसर ही नहीं प्रिवेंट कर रहे हैं, आप बाकी चीजें ही प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि वजन बढ़ने के साथ साथ बाकी बीमारियां भी आपके घर कर सकती हैं, जैसे हाई बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया, किडनी के डिजीज हो गए, लिपिड्स मतलब फैट ब्लड में ज्यादा हो गया। तो ये सब बीमारी प्रिवेंट करना है तो फिर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल चूज करना पड़ेगा। अब मुझे आज का जो टॉपिक दिया गया था वो बेसिक था कि आप बोन कैंसर कैसे डायग्नोस करते हैं। तो टॉपिक थोड़ा वेग सा है, फिर भी मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखिए, कैंसर जो कोई भी हो अगर वो डायग्नोस करना है तो उसके पहले हमें शक होना चाहिए कि वाकई में पेशेंट को कैंसर है कि नहीं, क्योंकि कुछ बीमारियां हैं जो कैंसर की तरह लगती हैं लेकिन वो वाकई में कैंसर नहीं होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई सिम्टम भी नहीं रहेगा। यूजली कैसे, हड्डियों कैंसर स्पेसिफिकली ऐसा रहता है कि कई बार पेशेंट्स हमारे पास तब आते हैं जब उनको चोट लगती है और एक्सरे निकाला जाता है और उसमें दिखता है कि हड्डी में कोई गांठ बन रही है जिसकी वजह से हड्डी कमजोर हुई है। या फिर कई बार पेशेंट फ्रैक्चर के साथ ही आते हैं और जब तक फ्रैक्चर हो जाता है तब तक काफी हड्डी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। फिर भी अगर एक एकेडमिक तरीके से देख समझें इस बात को, तो अगर हमें बोन कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें हमें साइंस और सिम्टम दोनों देखने पड़ते हैं। तो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको इस बीमारी होने के पहले या इस सिम्टम होने के पहले आपको क्या क्या तकलीफ हो रही थी। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो बोन कैंसर की तरफ इशारा कर सकती हैं। जैसे कई बार होता है कि पेशेंट को बहुत सीवियर इंटेंसिटी का पेन रहेगा जो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहेगा बिना किसी चोट लगे या बिना किसी लॉन्ग हिस्ट्री के। इसके अलावा जो भाग है उसमें सूजन रहेगी। और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमें बोलते हैं कि हमें तकलीफ होता है उस पाँव पे वजन रखने में या उस हाथ से भारी वजन उठाने में। इसके अलावा अगर पेशेंट का वजन पिछले 3-4 महीने में काफी तेजी से घट रहा है और उसे भूख नहीं लग रही है, उसके पेशाब में खून आ रहा है या लेट जब पैखाना करते हैं तो उसमें खून आ रहा है, तो एक इंडिकेशन रहता है कि शायद उस पेशेंट को कैंसर की तकलीफ हो सकती है। या फिर उसे कई बार फ्रीक्वेंटली खून इतना कम हो रहा है कि उसको रिकरेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ रहा है बिना किसी कॉज के, मतलब पहले आपको कोई बीमारी कभी नहीं हुई और सडनली आपका
खून इतना कम हो रहा है कि आप रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूज करवा रहे हैं, तो बेटर है कि पहले आप इवेल्युएट कराएं कि कहीं ये कोई छिपी बीमारी कैंसर तो नहीं है जिसकी वजह से आपका खून जो है वो खत्म हो रहा है। फिर जो रहते हैं, जो साइंस हमें दिखते हैं यूजली हड्डी के कैंसर में, बेसिकली क्योंकि हड्डी से चिपकी हुई गांठें रहती हैं, तो हमें वहाँ पे उस भाग में सूजन मिल सकती है, उस वो भाग सूज के फूल सकता है, उस जॉइंट का, जिस हड्डी में वो कैंसर है उसके जो आसपास के जॉइंट्स का मूवमेंट कम हो सकता है, बहुत रेयरली वहाँ पे घाव भी हो सकता है जिससे खून बहता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिनसे हमें शक होता है कि शायद ये कैंसर है। अगर हमें शक होता है तो सबसे पहले हम एक्सरे करा के देखते हैं कि एग्जैक्टली हम किस जो भाग से डील कर रहे हैं उसमें हड्डी का स्टेटस क्या है। क्योंकि अगर हड्डी डिस्ट्रॉय हो चुकी है तो बहुत कॉमनली ये है कि वो मोस्टली प्रॉब्लम कैंसर ही है। इस चीज में ये एक चीज देखनी पड़ती है कि पेशेंट की एज क्या है, क्योंकि एज के ऊपर भी कई बार किस प्रकार का कैंसर है वो डिपेंड करता है। जैसे ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा करके जो कैंसर हो, जो हड्डी के मूल का कैंसर है, ये आपको 40 साल के बाद बहुत रेयर है। अगर आपको हड्डी का कैंसर होगा तो यूजली वो 30 से 40 की उम्र के पहले हो जाएगा, क्योंकि 40 साल के बाद हड्डी का कैंसर होना बहुत रेयर है। 40 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि उसे हड्डी में गांठ है जिसकी वजह से हड्डी कमजोर हो रही है, तो हम पहले ये सोचते हैं कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कोई और कैंसर है जो वहाँ हड्डी में फैल चुका है जिसकी वजह से हड्डी कमजोर हुई है। लेकिन यही चीज अगर कोई बच्चा या 20 साल का आदमी लेके आता है तो हमें पहले शक होता है कि कहीं ये हड्डी का कैंसर तो नहीं है। तो अगर एक्सरे में हमें दिख रहा है कि हड्डी में गांठ दिख रही है जिसकी वजह से हड्डी कमजोर हो चुकी है, हड्डी में फ्रैक्चर हो चुका है, तो उसके बाद हम आगे की जांच करते हैं, जिसमें उस भाग का एमआरआई करके देखते हैं कि बेसिकली गांठ कहाँ से उपजी है और वो किस किस भाग में फैली हुई है। क्योंकि अगर आप हाथ या पाँव देखें तो उसमें केवल हड्डी नहीं रहती, उसमें मांसपेशियां रहती हैं, खून की नस रहती है, बाकी नर्व्स वगैरह रहते हैं और बाकी अवयव भी रहते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उस पर डिपेंड करता है कि हम किस कैंसर से डील कर रहे हैं, क्योंकि कई बार एमआरआई और एक्सरे से हमें एक अंदेशा हो जाता है कि हम बेसिकली किस तरह के कैंसर से डील कर रहे हैं। सबसे मेन चीज किसी भी कैंसर में डायग्नोस करने के लिए रहता है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब ये है कि हम उस कैंसर की गांठ का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं जिसकी हम जांच करते हैं, ताकि हम पता कर सकें बेसिकली ये टिश्यू किस प्रकार का है और वो कहाँ से उपजा है। तो बायोप्सी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रहता है जिसमें हम जिस भाग से का हमें गांठ का सैंपल लेना है उस भाग को बस सुन करके सुई से थोड़ा सैंपल लेते हैं, उसको जांच के लिए भेजते हैं। जांच की रिपोर्ट आने में यूजली 10 से 14 दिन लग जाते हैं, और बायोप्सी से हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कैंसर है कि नहीं। अगर ये कैंसर पता चलता है कि ये प्राइमरीली हड्डी का कैंसर है, तो फिर हम अगला स्टेप ये देखते हैं कि वो कैंसर कहीं और फैला है कि नहीं। क्योंकि जैसे बाकी बीमारियां वैसे ही कैंसर में भी स्टेज क्या है, मतलब कैंसर कितना एडवांस्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर कैंसर लोकलाइज्ड है, मतलब कैंसर एक ही जगह पे फैला हुआ है और बाकी शरीर में कहीं पर भी नहीं है, तो इलाज करना काफी संभव है और बेस्ट रिजल्ट मिलने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। लेकिन वहीं अगर कैंसर ऑलरेडी कहीं और फैला हुआ है तो फिर इलाज करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि बेसिकली अगर कैंसर का दूसरी ऑर्गन्स में फैला हुआ है तो इसका मतलब है कि वो बाकी ऑर्गन्स में भी फैला हुआ हो सकता है जो हम अभी नहीं पकड़ पा रहे। तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इलाज का हमारा ट्रीटमेंट का एम क्या रहेगा। क्योंकि अगर हम कैंसर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर हमारा हेतु रहता है ट्रीटमेंट करने का कि हम कैंसर को पूरी तरह नष्ट करें। लेकिन अगर कैंसर ऑलरेडी फैला हुआ है तो फिर हमारा इलाज का हेतु चेंज होकर ये हो जाता है कि पेशेंट को कितना कंफर्टेबल कर सकें और बीमारी को कैसे कंट्रोल कर सकें। तो ये पता करने के लिए हम बेसिकली कुछ जांचें कर सकते हैं, जैसे पेट सीटी स्कैन, सीटी छाती का सीटी स्कैन या फिर बोन स्कैन, जिससे पता चलता है कि बीमारी और कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो ये सब कुछ जांचें हैं जिनसे हमें आइडिया लगता है कि सबसे पहली बात कैंसर किस भाग में है, किस प्रकार का कैंसर है, वो कहाँ पे फैला हुआ है, और उसके बेसिस पे हम कैसे उसका इलाज कर सकते हैं। आप में से किसी को कुछ पूछना है? हेलो हेलो हाँ डॉक्टर बोलिए साहब। गौतम जी। हाँ बोले ये जो आम आदमी है, हाँ ये आम आदमी इसका वो कैसे पहचान होगा कि इनका ये जो सिम्टम होता है ना, हाँ। ये जो कैंसर का, तो वो सिम्टम का बारे में आप बताएंगे तो सही रहेगा। सिम्टम्स टेस्ट का। देखिए,
हाँ नहीं नहीं नहीं, मेन क्या है, टेस्ट करने से तो पकड़ जाएगा। करेक्ट लेकिन लेकिन वो कैसे वो समझेंगे कि उनका ये प्रॉब्लम है, इसका करेक्ट टेस्ट जरूरी है। डॉक्टर जी। करेक्ट। तो सिम्टम्स बेसिकली ये रहेंगे, देखिए अगर हड्डी का कैंसर है तो आपको उस भाग में, जैसे अगर घुटने में आपको दर्द हो रहा है बिना किसी चोट लगे और कई दिन से दर्द हो रहा है जो बिना दवाई, अब आप दवाई भी खा रहे हैं तो भी कम नहीं हो रहा है और कंटिन्यूअसली हो रहा है, और उसके साथ वहां पे सूजन आ रही है जो लगातार बढ़ती जा रही है, जो बिना किसी आप लोकल ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं तो भी कम नहीं हो रही, तो हम शक करेंगे कि शायद वहां पे कैंसर हो सकता है। देखिए पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी, कैंसर एक रेयर बीमारी है। ऐसा नहीं है कि हम काफी पेशेंट देखेंगे जिनको हड्डी का कैंसर है। अगर आप 100 मरीज हड्डी के पेन के, बोन पेन के देखेंगे तो उसमें आपको 5 से 10% लोग मिलेंगे जिनको कैंसर है, बाकी के 95% लोगों को कैंसर नहीं होगा। लेकिन कुछ सिम्टम्स रहते हैं जिससे आपको आइडिया लग सकता है कि शायद हम कैंसर से डील कर रहे हैं। इसमें बेसिकली ये रहता है कि पेशेंट को पेन का जो ड्यूरेशन, दर्द का जो ड्यूरेशन रहता है बहुत कम रहता है, मतलब हार्डली 2-3 महीने से दर्द हो रहा है और वो तेजी से बढ़ रहा है। जैसे अगर किसी को ऑस्टियो आर्थराइटिस है, मतलब जॉइंट में आर्थराइटिस का तकलीफ है, तो वो दर्द सालों तक रहेगा, मतलब 5-10 साल का पेशेंट को हिस्ट्री रहेगा कि उसको दर्द हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रेजुअली उसको काम करने की क्षमता कम हो रही है। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होगा। कैंसर में जो दर्द रहेगा बहुत 2-3 महीने का दर्द रहेगा जो धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा है, और उसके साथ सूजन भी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से ना तो आदमी चल पा रहा है, ना ही अगर उसको हाथ में तकलीफ है तो हाथ यूज नहीं कर पा रहा है, और सूजन की वजह से जो वहाँ की स्किन है या चमड़ी है उसमें भी हमें चेंजेस दिख रहे हैं। तो ये कुछ संभावनाएं रहती हैं, ये अगर सिम्टम्स रहेंगे तो शायद हम कैंसर से डील कर रहे हैं rather than कोई और बीमारी। इसके अलावा अगर आपका वजन बहुत तेजी से घट रहा है, मतलब आप पिछले 3-4 महीने में आपको 10 से 15 किलो वजन कम हो गया है बिना किसी कारण के, आप डाइटिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, आपका खाना पीना नॉर्मल है, फिर भी आपका वजन तेजी से घट रहा है, तो ये भी एक संभावना हो सकती है, ये भी एक इंगित करता है कि शायद आपको कैंसर है। इसके अलावा अगर आपको शरीर में और कहीं भी गांठें आ रही हैं, मतलब ना ना सिर्फ हाथों में बल्कि गले में, गर्दन में कहीं और भी आपको गांठें हैं, तो वो भी एक साइन हो सकता है कि शायद आप कैंसर से डील कर रहे हैं। तो अगर आप पेशेंट की तरह से देखें तो अगर आपको दर्द है 2-3 महीने का जिसकी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाए या वो पार्ट भाग को यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसके साथ आपका वजन तेजी से कम हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, भूख नहीं लग रही है, और आप अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको जो बेटर है कि आप जांच करवाएं। तो आप जो बोल रहा है, तो इसमें हम लोग ज्यादातर आदमी को क्या देख पाता है कि उनका आर्थराइटिस का ही प्रॉब्लम हम लोग देखते करेक्ट हैं। करेक्ट तो आर्थराइटिस का वो ट्रीटमेंट करता है, घुटने का दर्द है, ये पूरा जॉइंट जो पेन है, जॉइंट का पेन होता है, करेक्ट ये तो नॉर्मल सबका बोले, वो तो उसमें बहुत सारा तेल लगाते हैं, ये बहुत कुछ नहीं वो करते आपका हैं। बात सही है, लेकिन देखिए कोई भी ट्रीटमेंट करने से फिर भी आपके डॉक्टर जस्ट फॉर चेक आपका एक एक्सरे, तो बेसिक एक्सरे तो करवाएंगे ही। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा रहता है कि हर बीमारी का सिम्टम्स ऑलमोस्ट कॉमन रहता है, जैसे अगर कोई भाग में आपको कोई तकलीफ है तो उसमें आपको दर्द होगा, सूजन आएगा, और आप वो भाग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कैंसर भी अगर होगा तो आपको यही कॉमन सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन फिर भी आर्थराइटिस का इलाज करने के पहले भी आपको आपका डॉक्टर एक्सरे करने के लिए बोलेगा। क्यों? वो इसी कारणवश कि कहीं हम गलती से कोई हड्डी की गांठ को मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स कॉमन है, इसलिए एटलीस्ट बेसिक इन्वेस्टिगेशन आपका एक एक्सरे हर कोई करवाएगा ही, ताकि ये देखने के लिए, स्क्रीन करने के लिए कि हड्डी में कोई डिस्ट्रक्शन तो नहीं है। और दूसरी बात, आर्थराइटिस अगर आपको है तो वो किस स्टेज का है। तो ये है, तो हमारा हड्डियां है 206, और हम लोग तो जॉइंट कितना, जॉइंट तो ज्यादा नहीं है, हाँ लेकिन हड्डी तो 206 है। करेक्ट। जॉइंट तो हम लोग का कितना है, 4-5 जॉइंट है। नहीं नहीं, 4 पॉइंट जॉइंट नहीं है, ऑलमोस्ट 50-60 जॉइंट है, आपके हर रीढ़ की हड्डी एक जॉइंट है। हाँ। हर रीढ़ की हड्डी में ऊपर नीचे, मतलब एक अगर रीढ़ की हड्डी आपकी है ना, 29 हड्डियां रहती हैं, ठीक है, अच्छा। तो हर रीढ़ की हड्डी 4 जॉइंट बनाती है, तो अगर जॉइंट काउंट करेंगे, जॉइंट ऐसे काउंट नहीं करते, 100 के ऊपर जॉइंट रहते हैं। लेकिन वही बात है, और एक हड्डी ना एटलीस्ट 2 जॉइंट बनाती है, मतलब अगर आपकी जांग की हड्डी है तो हम्म। ऊपर और नीचे 2 जॉइंट बना रही है, वो कूल्हे का जॉइंट, हिप जॉइंट भी बना रही है और नी जॉइंट भी बना रही है। तो अगर आप नंबर देखेंगे तो एक्चुअली नंबर ऑफ जॉइंट आपको ज्यादा मिलेंगे। हाँ, वही है कि आम आदमी जैसे वो सोच पाएंगे कि हाँ, यही का चांस है हम लोग का इसमें, थोड़ा तो वही मैं बता, देखिए आर्थराइटिस सोचिए। रहेगा, जैसे अभी आप 40 आप क्रॉस कर जाएंगे तो हम्म। आपको सपोज, देखिए मोस्ट कॉमनली कैंसर जो भी होता है वो कुछ स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन है, जैसे घुटने के आसपास, घुटने के आसपास कैंसर की गांठ बहुत कॉमन है, या फिर कंधे के आसपास। लेकिन अगर घुटने में आपको दर्द है जो 5-6 साल से है, या फिर आपको चोट लगने के बाद से दर्द है,
जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और अब आप 5-6 साल के बाद आप ऐसी स्टेज पे पहुंचे कि आपको काम करने में मुश्किल हो रहा है, तो हम पहले ये नहीं सोचेंगे वो कैंसर है। क्योंकि कैंसर अगर आपको होगा तो पहली बात तो जब वो हड्डी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो सिम्टम्स बहुत तेजी से आपके बढ़ेंगे। तो आप 5-6 साल तक आप कैंसर के साथ आप बिना किसी सिम्टम्स के रहना बहुत मुश्किल है। तो अगर ड्यूरेशन आपका सिम्टम्स का बहुत छोटा है, मतलब 2-3 महीने में आपको तेजी से आपका दर्द बढ़ रहा है, तेजी से आपको मूवमेंट करने में तकलीफ हो रहा है, और उसके अलावा आप वहाँ पे बिल्कुल भी वजन नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर वो एक साइन हो सकता है कि शायद आप किसी और बीमारी से डील कर रहे हैं रेदर देन ऑस्टियोआर्थराइटिस। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा आपने बोला वो सच है, काफी पेशेंट्स आपको मिलेंगे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित हैं, लेकिन ऐसा पेशेंट वो आपको बहुत रेयरली मिलेगा वो जो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है, जो बिल्कुल ही भार नहीं दे पा रहा है अपने पाँव पे। क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जो आर्थराइटिस के रहेंगे वो तो अपना वजन लेके चल लेंगे। और यूजुअली आर्थराइटिस में टिपिकल सिम्टम ये रहता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको दर्द रहता है, रात में सोते समय दर्द होता है, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे काम करना चालू करते हैं आपका दर्द धीरे धीरे कम होता जाता है। जो कि कैंसर की अगर आपको गांठ है तो उसमें नहीं होगा, क्योंकि आप जितना वजन देंगे उतना आपको दर्द बढ़ता जाएगा। एकदम सही। तो ओपन टू ऑल, जितना पार्टिसिपेंट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो डॉक्टर साहब को डायरेक्टली पूछिए। आपका कोई जानकारी ये हड्डी का कैंसर छोड़ के भी कुछ पूछना चाहता है, अदर्स पूछ सकता है, क्योंकि डॉक्टर बाबू का पास तो ये तो स्पेशलिटी है, ये छोड़ के भी तो नॉर्मल है, सब कुछ तो जानती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस? सर ये जो आपने बोला अभी, तो हम ऑडियंस के लिए थोड़ा बोल रहे हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉब्लम तो हम लोगों का पता चल रहा है। प्रॉब्लम पता चला, करेक्ट, लेकिन अगर आपको हड्डी कैंसर है तो बेसिकली उसके पहले फिर बाद नेक्स्ट स्टेज ये आता है जो मैंने आपको बताया था कि वो किस टाइप का कैंसर है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखिए बेसिकली कैंसर में अगर हमें ट्रीट करना है तो हमें बस 3 चीजें जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को: कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी। लेकिन हर कैंसर में हर हर चीज मुमकिन नहीं होती है, क्योंकि कैंसर के टाइप पे निर्भर करता है कि वो किस चीज को सेंसिटिव रहेगा। जैसे कुछ कैंसर हड्डी के कैंसर है कॉन्ट्रोसार्कोमा करके, जिसमें हम रेडिएशन नहीं दे सकते, कीमो नहीं दे सकते, क्योंकि उनका असर नहीं होता है। उसमें हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है सर्जरी का। लेकिन यही अगर आपको दूसरी तरह कैंसर है जिसमें हम कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं और रेडिएशन भी दे सकते हैं, जिसका इफेक्ट इक्विवेलेंट टू सर्जरी होगा, तो कई बार हम बिना सर्जरी के कीमो और रेडिएशन से भी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जैसे कई बार ब्लड कैंसर रहता है जिसमें हड्डी में गांठ बन जाती है, तो उसमें सर्जरी का रोल बहुत कम है, क्योंकि ये रिलेटिवली ऐसे कैंसर है जिसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन से क्योर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। तो इन सब केसेस में फिर हम सर्जरी नहीं सोचेंगे पहला ऑप्शन, पहले हम किसी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देके असेस करेंगे कि उसका रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो सर्जरी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट वाइज सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं तो वो इस पर निर्भर करेगा कि कैंसर किस प्रकार का है। और पहली बात, दूसरी बात, वो कैंसर हड्डी का ही है कि कहीं और से आया है और हड्डी में फैला हुआ है। जैसे अभी अगर आप मेल्स में देखें तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत कॉमन है। आप 60-70 साल के बाद अगर देखेंगे तो कई लोगों में प्रोस्टेट कैंसर होगा, जिसमें जब वो डायग्नोस होते हैं तो उसमें हड्डी में ऑलरेडी गांठें आ चुकी होती हैं। लेकिन जस्ट क्योंकि आपको हड्डी में गांठें हैं इसलिए आपको हड्डी का ऑपरेशन या हड्डी के लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कराना है, ऐसा नहीं है। कि प्रोस्टेट कैंसर में इलाज जो है वो हार्मोनल ट्रीटमेंट है। तो अगर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट लेंगे तो जब वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे हड्डी की गांठें भी कंट्रोल में आ जाती हैं, तो उस केस में हम फिर ऑपरेशन या कुछ और स्पेसिफिक अलग तरह का ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। वैसे ही महिलाओं में अगर ब्रेस्ट कैंसर है जिसमें कि हड्डी में कैंसर स्प्रेड हो चुका है, तो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कर लेते हैं उसके बाद जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, थेरेपी दी जाती है, वो आपके हड्डी के जो गांठें हैं उसका भी कंट्रोल कर लेती है। तो है ब्रेस्ट कैंसर में भी अगर वो ब्रेस्ट कैंसर है जो हड्डी में फैला तो उसमें भी सर्जरी का ऐसा रोल ज्यादा इतना ज्यादा नहीं रहता है, अनलेस उसका रिस्पॉन्स खराब। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं मेरा एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब से कि ये जैसे बोन कैंसर हो या फिर जो प्रोस्टेट कैंसर या लंग करेक्ट। कैंसर या फिर जो ब्रेस्ट कैंसर जो कॉमन मतलब होता है, तो इसमें ऐसा कोई जो जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि आफ्टर 40 एक रेगुलर चेकअप पे जाना चाहिए, तो कोई ब्लड टेस्ट या फिर ऐसा कोई टेस्ट है जिससे हम रेगुलर एवरी ईयर करें वो टेस्ट, ताकि पता करेक्ट। चले कि हाँ करेक्ट। तो ये। देखिए मेल्स में बेसिकली क्या रहता है, मेल्स में अगर हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं तो अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, टोबैको यूजर नहीं है,
तो सबसे कॉमन कैंसर आपको जो हो सकता है वो प्रोस्टेट कैंसर, तो उसके लिए हम लोग पीएसए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन करके एक ब्लड टेस्ट रहता है जो हम चेक करते हैं। तो ये आप ईयरली कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसका वैल्यू 10 से कम है इसका मतलब आपको प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, और वो 10 से और ऊपर जाता है तो शक ज्यादा है। तो ये एक चीज है जो आपको रेगुलर चेकअप में आप कर सकते हैं। फीमेल्स में वैसे ही, जब आप फीमेल्स में जब रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, आप 40 ईयर्स के बाद आपका एक ब्रेस्ट मेमोग्राम और ब्रेस्ट एग्जाम, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते ही करते हैं, क्योंकि उनमें सबसे कॉमन ब्रेस्ट कैंसर रहता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्थ चेकअप में आपको करवाई जाएंगी। यूजली 40 ईयर्स के बाद आपको कोई भी आप जनरल हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप ये करवाइए। इसके अलावा हाँ अगर आप वही। एडिक्शन, आपको कोई चीज का एडिक्शन है, जैसे अगर आप तंबाकू खा रहे हैं या खैनी खाते हैं, और क्योंकि खैनी अगर आप जितना टाइम मुंह में रखेंगे तो आपको माउथ अल्सर हो सकते हैं, तो अगर आप वो हिस्ट्री देंगे कि आप खैनी का रेगुलर यूजर हैं, तो फिर आपका एक ओरल हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। और उस टाइम पे अगर लगेगा कि आप कोई सस्पिशियस लीजन दिख रहा है तो उसका बायोप्सी भी कर लेते हैं। तो In वही addition to this, I want to add something. In addition to this, আমাদের কিন্তু এই ধরনের স্ক্রিনিং এর বেশ কিছু প্যাকেজ অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা हाँ, মানে এটা আমরা বলি, তো এই প্যাকেজ গুলো কিন্তু আমরা করতে পারি, বা বিশেষ করে যারা মেল, দোজ হু আর মেল, তাদের देखिए, জন্য কিন্তু हाँ तो मैं भी बताऊँ, বলি। कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप जब होता है, जो यूजली आपका इंश्योरेंस के थ्रू भी अगर आपका हेल्थ चेकअप होता है, तो उसमें पीएसए और मेमोग्राम यूजली इंक्लूडेड रहता है, और एक महिलाओं के लिए पैप्समियर विद मेमोग्राम ही, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर एक चीज है, मोडेलिटी है जो हर साल करनी रहती है, और एक मेमोग्राम रहता है जो 40 साल के बाद करना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर कोई इंश्योरेंस लेते हैं तो उसका जो एनुअल हेल्थ चेकअप रहता है 40 ईयर्स के बाद का, उसमें ये सब इंक्लूडेड ही रहता है। और वैसे भी अगर आप किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो उनका जो हेल्थ चेकअप का सिस्टम रहता है उसमें आप ही सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें पैकेज में आपका इंक्लूडेड रहेगा कि मेल्स रहेंगे तो पीएसए बाय डिफॉल्ट वो कराएंगे ही, फीमेल्स रहेंगे तो पैप्समेयर के साथ आपका ये ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मेमोग्राफी करवाएंगे। सर और एक कोई ऐसा कोई ब्लड टेस्ट या फिर ऐसा कोई टेस्ट है क्या जिससे पता चले कि इस इंसान का कैंसर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, ज्यादा है या कम है, ऐसा कुछ टेस्ट है? देखिए, अभी तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि हम डेफिनेटली बोल सकें कि आप में कैंसर की संभावना ज्यादा है या इसमें कम है, क्योंकि अभी जो न्यू टेस्ट आ रहे हैं, जिस एक चीज होती है लिक्विड बायोप्सी करके, लेकिन वो अभी इन्वेस्टिगेशन मतलब रिसर्च स्टेज पे है। हो सकता है 10-15 साल बाद वो आ जाए, लेकिन अभी क्योंकि देखिए कोई भी कैंसर जब होता है ना, तो उसका कॉज है कि आपके डीएनए में चेंज हुआ है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स है वो तेजी से डिवाइड कर रहे हैं और लोकल टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये डीएनए लेवल पे चेंज है। तो अगर हम किसी तरीके से अगर हम वो डीएनए चेंज को जल्दी पकड़ सकें तो ऑब्वियसली हम कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मास रिलीज के लिए ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल हुआ नहीं है। काफी चीजें हैं जो अभी रिसर्च में चल रही हैं, जिनका अभी तक आउटकम आना बाकी है, कि जिससे जो अगर मास लेवल पे अगर अप्लाई की जाएंगी तो शायद हो सकता है हम पहले कैंसर को पकड़ सके। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें कैंसर का हिस्ट्री बहुत कॉमन है, सपोज आपकी फैमिली में 4 लोगों को कैंसर हो चुका है, भले ही अलग अलग कैंसर, किसी को थायराइड कैंसर है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ओवेरियन कैंसर है, तो अगर आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है, या फिर अगर आप एक फीमेल है जिसकी माँ को और उनकी दादी को भी कैंसर हुआ है, तो हम सस्पेक्ट करेंगे कि शायद आप में भी एक स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से आप कैंसर के लिए मोर प्रोन है। तो अगर आप ऐसी हिस्ट्री देंगे तो फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जेनेटिक टेस्ट करवा लीजिए, ताकि हम प्रूव कर सकें कि आपको वो जेनेटिक डिफॉर्मिटी म्यूटेशन है कि नहीं। क्योंकि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में देखा गया BRCA1 और 2 करके 2 जीन रहते हैं, जी ये अगर आपको हैं तो आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। और यूजली पेशेंट्स हिस्ट्री देते हैं कि हाँ हमारी माँ या हमारे दादी को भी कैंसर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर था। तो अगर कोई पेशेंट हमें ऐसी हिस्ट्री देगा तो हमें सजेस्ट करेंगे आप एक BRCA जीन करवा लो, चाहे आपका उम्र 30 साल ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपका BRCA1 जीन पॉजिटिव आता है तो फिर आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन 40 के पहले नहीं, 40 तक नहीं रुकेंगे, फिर हम आपका 30 साल से आपका स्टार्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है। और इसी वैसे ही अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कि आपके घर में कई लोगों को कैंसर हो रखा है, तो फिर हम TP53 करके एक जीन रहता है, RB1 रेटिनोब्लास्टोमा जीन रहता है, जो हम चेक कराते हैं कि अगर आपका ये जेनेटिक वेरिएशन है तो फिर उसमें भी फिर हम आपका रेगुलर स्क्रीनिंग करने के लिए बोलेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। लेकिन एक बार आपको समझना पड़ेगा, ये प्रोबेबिलिटी ना बहुत कम है, मतलब क्योंकि हम लोग डॉक्टर्स हैं इसलिए हम रूटीनली ऐसे पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन आप जनरल पॉपुलेशन में देखेंगे तो आई थिंक आपको ज्यादा लोग पता भी नहीं होंगे जिनका फैमिली हिस्ट्री इतना स्ट्रांग रहता है कि उनको उनके घर में कई लोगों को कैंसर होगा।
लेकिन क्योंकि हम हॉस्पिटल, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल बायस, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं और हम पेशेंट्स ही देख रहे हैं, तो हम रूटीनली ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनका हिस्ट्री काफी स्ट्रांग रहता है कैंसर के लिए। लेकिन जनरल पब्लिक में आपके लिए ऐसे लोग मिलना काफी रेयर रहेगा। तो क्योंकि वो रेयर है इसलिए वो रूटीन चेकअप का पार्ट नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर आप चेकअप के लिए भी जाते हो तो यूजुअली आपको एक कंसल्टेशन करवाते हैं, क्योंकि ताकि ये देखा जा सके कहीं आप कोई ऐसी बीमारी को प्रोन तो नहीं है जिसका हेरिडिटरी हिस्ट्री हो सकता है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देंगे तो फिर हम आपको शायद आपको सजेस्ट करें कि आप ये चेकअप भी करवा लीजिए। लेकिन ये हर किसी के लिए वाजिब नहीं है, क्योंकि अगर आपका हिस्ट्री नहीं है तो आपको चांस होना कि आपको जेनेटिक डिफेक्ट है वो काफी कम है। ओके ओके। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, पैंक्रीज में जो होता है वो तो ज्यादा दिन किसी का पता ही नहीं चलता है जो उनका कैंसर हुआ। करेक्ट। तो जब पकड़ जाता है उसके बाद तो टाइम में नहीं मिलता है, 45 डेज टू 60 डेज का अंदर उसका जाने का तो टाइम हो कुछ जाता है। हाँ, तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जैसे पैंक्रियास होगा, तो मैंने वही बोला पैंक्रियास है, गॉल ब्लैडर भी है। तो दो तीन कैंसर ऐसे हैं जिसका प्रोग्नोसिस प्रोग्नोसिस मतलब मैंने आउटकम का। मेरा जानकारी ऐसा बंदा लोग है जो जितना सुस्त है देखने में किसी का पता ही नहीं चला कि इसका अंदर में करेक्ट। कुछ हुआ है। करेक्ट। तो लेकिन हाँ। उसका जब तुरंत तो हम लोग तो एक मालदा में प्रोग्राम करके आया था कुछ दिन पहले, वो बंदा पता ही नहीं चला उनका पैंक्रीज में ऐसा हुआ। करेक्ट। स्टीव तो जॉब्स को भी पैंक्रियाटिक कैंसर था, अगर आपको शायद पता हो हाँ हाँ पता है, कि वही स्टीव जॉब को हुआ। तो करेक्ट। ये है पैंक्रीज में जो होता है वो तो कोई उम्र का बात ही नहीं है। उसमें ये कोई उम्र का बात नहीं। करेक्ट। तो उसमें वही है पैंक्रियास कैंसर, गॉल ब्लैडर और कैंसर, हेल्थ का देखने भी कोई पता नहीं चलेगा कुछ नहीं इसका पता ऐसा है। चलेगा। करेक्ट। तो सर वही बात है ना, तो इसीलिए, लेकिन क्योंकि आप अगर उसका स्क्रीनिंग कराना चाहेंगे, अगर आप 10 लाख लोगों का स्क्रीनिंग कराएंगे तब शायद आप 5-10 पेशेंट पकड़ पाए जिनको पैंक्रियाटिक कैंसर हो। अगर आप सबका सीटी स्कैन कराने भी लगे तो आपको 5-10 पेशेंट ही मिलेगा। सपोज आप लाख लोगों का टेस्ट कराते हैं तो आपको 5 या 10 पेशेंट मिलेंगे जिनका पैंक्रियाटिक कैंसर सीटी स्कैन करा के पहले पकड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सीटी स्कैन रेगुलरली कराते हैं तो आप रेडिएशन, क्योंकि सीटी स्कैन भी एक तरह का रेडिएशन है, तो आपको दूसरा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक चीज रहती है रिस्क बेनिफिट रेशियो, मतलब अगर हम कोई जांच कर रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका रिस्क क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। तो अगर आप रिस्क बेनिफिट रेशियो देखेंगे तो पॉपुलेशन स्क्रीनिंग पैंक्रेटिक कैंसर के लिए उतना वाजिब नहीं है, क्योंकि स्क्रीनिंग करना है तो हमको सीटी स्कैन करना है, और अगर हम लाख लोगों का स्क्रीनिंग करेंगे तो पहली बात तो कॉस्टली है। दूसरी बात, अगर वो पॉजिटिव भी आता है तो वो बहुत कम लोगों में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पैंक्रेटिक कैंसर यूजुअली बहुत रेयर कैंसर है। तो वो थोड़ा ये बात हो जाती है कि वो फिर आप अगर पैंक्रेटिक कैंसर से ग्रसित हो तो आप अनलकी हैं, क्योंकि बेसिकली पैंक्रेटिक कैंसर एक ऐसा कैंसर जो बहुत रेजिस्टेंट है कीमोथेरेपी के लिए भी, रेडिएशन के लिए भी। तो अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे अगर आपको डिटेक्ट होता है तो बहुत, अगर आप बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए तो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन फिर भी सर्वाइवल आउटकम काफी पुअर रहता है। तो ये ऐसे ही होगा ना जैसे 30 ईयर्स और 35 ईयर्स में किसी को हार्ट अटैक आ जाए, आप जिम कर रहे हैं, आप सारा हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी रहे हैं, लेकिन सडनली आप एक दिन जिम में जाते हैं और सडनली आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मतलब हाँ कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो आपका डेथ हो जाए, तो ये आप, क्योंकि अभी मीडिया इतना स्ट्रांग है तो इसलिए आपको सुनने में आता है, लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है। आपके हम लोग कितने लोगों को देख रहे हैं जो रेगुलरली जिम कर रहे हैं लेकिन किसी का भी कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप पिछले 1 साल में देखेंगे, रेगुलरली आपको टीवी पे हर 2-3 महीने में एक बार मिल जाएगा न्यूज कि किसी का जिम में जो है जिम कर रहे थे या साइकिलिंग कर रहे थे और उसमें कार्डियक अरेस्ट आया और उनका डेथ हो गया। तो ये थोड़ा लक फैक्टर भी हो जाता है। अब भले, अब क्योंकि वो जिम में जा रहा था तो हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि, और क्योंकि उसका फिजिक ऐसा है तो ये आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसको कोई और हेल्थ कंडीशन है, लेकिन फिर भी लोगों में कार्डियक अरेस्ट होता है, चाहे वो 319259 हेल्दी। पोस्ट अभी अभी तो डॉक्टर अनिर्बान जो सुस्त है वो 37 ईयर्स का डॉक्टर, उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ ना, चला हाँ गया ना। वही तो बोल रहा हूँ। तो वो तो ये थोड़ा डॉक्टर लक है। फैक्टर। करेक्ट। तो वही बोल रहा हूँ कि आप हेल्दी भी हैं तो कुछ चीजें देखिए, आप अगर आप कंट्रोल क्या करते हैं, आपके यहाँ कंट्रोल में क्या है वो आपको वो देखना है ना। नहीं, आप वही क्या वही 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 मेन बात है कि डॉक्टर लोग भी वो भी नहीं बच पा रहा है। उसी का वो तो प्रिकॉशन जानता है। करेक्ट। प्रिकॉशन देखिए, कोई भी चीज ना 100% इफेक्टिव नहीं है। आप किसी भी डॉक्टर से मिलेंगे तो कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि आप ये एडवाइस फॉलो करो आप 100%। जैसे आज आप मुझसे पूछें कि क्या मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो मैं भी आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ, चाहे मैं कुछ भी ना करूँ, चाहे मैं स्मोकिंग ना करूँ, एल्कोहल ना पीऊँ या और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूँ, फिर भी ये गारंटी नहीं रहेगा कि मैं 100 ईयर से जी पाऊंगा, क्योंकि चेंजेस कभी भी आ सकते हैं, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है।
एक ही चीज है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम अगर आपको है तो पहले डिटेक्ट हो जाए और आप उसका उचित इलाज कर पाए। लेकिन एक थोड़ा रहता है कि हो सकता है आप उस स्मॉल रेयर पॉपुलेशन में जिसमें प्रॉब्लम तेजी से बढ़ जाए, कि आपको सिम्टम्स हो और आपको प्रॉब्लम इतनी तेजी से बढ़े कि आप बाय द टाइम आप हॉस्पिटल तक पहुंचे उसके पहले ही आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो वो भले ही वो छोटा ग्रुप है लेकिन वो है एक ग्रुप जिसमें कि प्रॉब्लम इतनी तेजी से बढ़ती है कि आपके पास टाइम ही नहीं रहता कि आप किसी डॉक्टर को दिखा पाएं और आपके जो प्रॉब्लम है उसका समाधान ढूंढ पाएं। Dr. Gupta, यस, I have a question. हाँ Uh, बोलिए। Please tell me, why should we go to your concern? I mean, Narayana. Why not other places? We What is as the a- facilities? See, it's not like you have to come to our hospital only. It's not like that. You can go to any hospital of your choice. See, basically, this is not for mark. See, as per me, I have come here only to give you information. Right. See, okay, it's not like you have to come to our hospital only. The thing is, you have to choose a healthy lifestyle. The mandate which was given to me was to educate you people about bone cancer, and if any other health issues you have, or if any health questions you have, I have to answer those. I am not Correct. here to convert you to a patient of to be a consumer of No. Narayana Health. I am here as a No, representative of Narayana Hospital. I'm telling actually what other extra facilities we can have from your concern. See, see, I am a doctor. I can tell you about my facility. See, at the end of the day, it is you who has to decide whether you want to choose Narayana or not. If you want to ask me why you should choose Narayana, I can just, if a single answer if I can give you is, we can give you comprehensive specialties are available, and in a single roof you can get everything. Correct. Because all the investigation facility, lab facility is available, and we have doctors who are trained in different specialties so that you don't have to run around the city to seek opinions from different doctors. But the mandate which was given for me was not to convert you to Narayana No, Health. no. Okay, the Actually, mandate given to me was to educate you people about bone cancer. With that correct. mandate only I've come to you. Correct. And the thing is, see, healthy lifestyle is something which it's not like only if you become a patient of Narayana Health, then only you can live a healthy lifestyle. Or it's not like that. It's never like that. See, healthy No. lifestyle is something which you have to choose for yourself. और वो आप चूज कर सकते हैं। और एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि कोई इमरजेंसी है तो अगर आपके पास टाइम है तो यस, आप जो एस्टेब्लिश फैसिलिटी उसमें जाएं। लेकिन ये मत कीजिएगा कि एक हॉस्पिटल पास में पड़ गया और आप इमरजेंसी में दूसरे लंबे दूरी पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर इमरजेंसी है तो बेटर है कि आप एक हॉस्पिटल में जाके एटलीस्ट बेसिक ट्रीटमेंट ले लें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। बाद में पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए तब आप हायर सेंटर पे जाइए। Right. Correct. I ठीक got है, your point. तो ये आपको एक्चुअली कोई डॉक्टर नहीं बोलेगा कि इमरजेंसी में आप 3 घंटे ट्रैवल करके आप हमारे हॉस्पिटल में आओ। हमारा नहीं, भी ऐसा है, बात तो नहीं आपका हो जो सकता। सबसे नजदीकी हॉस्पिटल है उसमें जाइए, हाँ। गेट योरसेल्फ स्टेबलाइज्ड। क्योंकि देखिए Exactly. टाइम कम रहता है, कोई भी इमरजेंसी अगर आपके पास होगा ना, टाइम ड्यूरेशन आपके पास कम रहेगा अगर पेशेंट स्टेबल है। क्योंकि अगर आपका पेशेंट को देखने का नजरिया और हमारा देखने का नजरिया बहुत डिफरेंट रहता है। क्योंकि अगर पेशेंट स्टेबल है तो आप उसको शिफ्ट करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट अनस्टेबल है उस टाइम पे अगर उसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और जो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट जो हम दे सकते हैं वो अगर आप मिस कर रहे हैं तो कई बार कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और रिजल्ट अच्छे ना आए। तो Correct. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इमरजेंसी है, आपका पास आसपास बड़ा हाँ, हॉस्पिटल है नजदीक उसमें जो आप है जाइए। वही। लेकिन केवल बड़े हॉस्पिटल में जाके ही आप बच पाएंगे ऐसा नहीं है। कई बार आपका जो स्टेबलाइजेशन है वो आपको छोटे हॉस्पिटल में मिल सकता है। आप स्टेबल हो जाइए उसके बाद आप सीख कीजिए, क्योंकि पेशेंट स्टेबल होना ज्यादा जरूरी है। एकदम। थैंक यू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। that फर्स्ट is the एड जो first होता aid, है, correct. So always seek treatment from a nearby hospital, and then once you are stable, then you can seek treatment from a higher hospital or higher center. तो ये आप डॉक्टर साहब आपको ये बोला है जो हम लोग इंडस्ट्री में जो देख रहे हैं, हमारा इंडस्ट्री में की और दो से चैट जीपीटी एंड एआई आर्टिफिशियल हाँ। इंटेलिजेंस इतना वो लोग इतना आगे बढ़ रहा है, तो ये मेडिकल में तो आर्टिफिशियल एआई का तो सामान होना चाहिए। हो रहा है, मेरा ख्याल से हो रहा है। हो रहा है। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा ना, मेन क्या है, हम बोलने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग कोई एयरपोर्ट में जा रहा है तो उसमें हम लोग का जब स्कैनिंग होता है, हमारा बैग में छोटा से छोटा चीज भी है वो तुरंत पकड़ लेता है। करेक्ट। तो ऐसा अगला दिन कोई हर हॉस्पिटल में ऐसा चीज हो रहा जो उसका जस्ट उनके वो उसका पास करेंगे
उनका पूरा बॉडी में क्या है बोल देंगे तुरंत। Correct. लेकिन आप ये चीज भूल जाते हैं ना कि भारत में एयरपोर्ट्स कितने हैं? हाँ हर पता है, सिटी में हम बोला एयरपोर्ट कि नहीं है, जब टेक्नोलॉजी वहीं ओनली पे वन है, करेक्ट। जब मेरा टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो डेफिनेटली माने जैसे ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी हॉस्पिटल में क्या है, जस्ट वो डोर का जैसे हम लोग हर जगह पे एंट्री में जैसे मेट्रो का एंट्री में जाने से होता करेक्ट, है, ऐसा कुछ हाँ होने से क्या स्क्रीनिंग, होता है ना, वही बोल रहा हूँ ना, तो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। तो स्किन। स्क्रीनिंग मोडालिटी जो रहती है ना, देखिए एक चीज रहती है, मैं वो फिर से उसी बात पे आऊंगा ना, आपको रिस्क और बेनिफिट देखना पड़ता है। आप आपके बैक का एक्सरे स्कैनिंग करवा रहे हैं, उसमें कोई जीवित चीज नहीं है, आप उस पर कितना भी एक्सरे रेडिएशन मारिए उसका साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप एक लिविंग इंडिविजुअल पे आप एक्सरे रेडिएशन मारेंगे लगातार, तो एक पॉइंट आएगा जिसका उसको रेडिएशन टॉक्सिसिटी होगी। तो इसीलिए एक चीज रहती है रिस्क बेनिफिट रेशियो, कि कोई भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट कितना मिलेगा और उसका रिस्क क्या है वो हमें समझना पड़ता है। जैसे अगर हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, सिंपल ब्लड टेस्ट जिसमें आपको 10 ml ब्लड खींच के हम आपको जांच कर रहे हैं और हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो सिग्निफिकेंट है, तो वो वैलिड है क्योंकि उसमें आपको रिस्क कुछ नहीं है। लेकिन यही अगर हम आपका 6-6 महीने पे सीटी स्कैन कराते रहेंगे होल बॉडी का, जिसमें हम आपको हर 6 महीने में रेडिएशन दे रहे हैं, तो उसका बेनिफिट से ज्यादा आपको रिस्क होने का चांस ज्यादा है। क्योंकि सीटी एट द एंड ऑफ द डे आप रेडिएशन आपको आप एक्सपोज हो रहे हैं, तो कभी ना किसी को तो उसका साइड इफेक्ट झेलना पड़ेगा ना। तो स्क्रीनिंग अगर आप बोलेंगे तो जैसे मैंने बोला ना कि आप 40 ईयर्स के बाद अभी कुछ ब्लड टेस्ट आए हैं जिनसे कि हम पकड़ सकें कि आपको शायद उस कैंसर होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो अगर आप उस स्क्रीनिंग में आएंगे, आप पॉजिटिव आते तो फिर आपका जो चेकअप होगा वो और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कैंसर के लिए अभी वैसा बायोमार्कर मिला नहीं है, ऑल्दो रिसर्च चल रहा है। लेकिन जब आएगा तो डेफिनेटली, जैसे आज से 10-15 साल पहले डिजिटल एक्सरे हर जगह नहीं होता था, डिजिटल एक्सरे केवल ट्रॉमा सेंटर्स में हुआ करता था। लेकिन पता है, अगर आप पता है। देखेंगे हर टायर 3 सिटी में आपको एक डिजिटल एक्सरे का सेंटर मिल ही जाएगा, और अब इवन टायर 2 सिटीज में अब एमआरआई फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि एक चीज ये होती है ना कि आपके पास तलवार है, लेकिन अगर आपको यूज करना आता है कि नहीं वो भी डिपेंड करता है। कि आपके पास तलवार है लेकिन आपको यूज करना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि आप स्क्रीनिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आपको इंटरप्रेट करना नहीं आया, मतलब आप नहीं बता सके कि उसका यूज कैसे करना है उस इंफॉर्मेशन का, जो आप बोल रहे थे बिग डाटा और एआई का, तो 5 साल पहले आप जो वो 5 साल पहले यही चीज आती थी कि बिग डाटा, कि हाँ इतना डाटा आ जाएगा कि हम प्रिडिक्ट कर सकें, प्रिडिक्शन मॉडल्स बना सकें कि आपका आगे क्या होने वाला है या पेशेंट का क्या होगा। उसको हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं नॉमोग्राम्स। मतलब आज हमने एक पेशेंट को डायग्नोस किया, तो 5 साल बाद उसको कॉम्प्लिकेशन होने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा वो हम आज ही आपको बता दें कि सर आपका ये बीमारी आज हमने पकड़ा है, आपको 5 साल में ये प्रॉब्लम आने का संभावना इतना है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा उसमें नॉमोग्राम्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। तो नहीं। बात ये रहती है ना कि थोड़ी चीजें जो रहती हैं वी हैव टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे 5-10 ईयर्स बैक बिग डाटा के लिए अभी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो डेटा साइंटिस्ट करके काफी हाइप था कि आप डेटा साइंटिस्ट बनिए। उसके 5 साल है बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी इज गोइंग टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन हेल्थ केयर। लेकिन 15-20 ईयर्स डाउन द लाइन वी आर वेटिंग फॉर दैट रेवोल्यूशन टू हैपन। सेम थिंग विद बिग डाटा और एआई का भी, मुझे जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ हाइप स्पेशली इन हेल्थ केयर। बिकॉज हेल्थ केयर में काफी प्रोबेबिलिटी रहती हैं, काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं जो आपको आप इनपुट करके आप उसका रिजल्ट नहीं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो एआई इज बेसिकली प्रिडिक्शन मॉडल, और प्रिडिक्शन मॉडल में जितना वेरिएबल्स कम रहेगा उतना प्रिडिक्शन आपका स्ट्रांग रहेगा। लेकिन हेल्थ सेक्टर में अनफॉर्चुनेटली इतना सारा वेरिएबल छुपा हुआ रहता है कि आप प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो AI in healthcare, I don't think so. We are at a stage as of now that it is going to play a major role even 5 or 10 years down the line. Maybe in engineering, maybe, or maybe in screening जो पुलिस सर्वेलेंस करती है उसमें शायद। लेकिन हेल्थ केयर में AI का इतना बड़ा रोल मैं अगले 5-10 ईयर्स में तो नहीं देख पाऊंगा, मतलब मेरे हिसाब में तो नहीं हो पाएगा। তবে এআই এর ব্যবহার হয়তো হচ্ছে না, কিন্তু এর সাথে সাথে আর একটা জিনিস বলছি, সেটা হচ্ছে যে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আগের থেকে অনেক বেশি ফাস্ট হয়েছে। তার একটা উদাহরণ হচ্ছে একটা সময় কিন্তু রোবট দিয়ে সার্জারি আমরা ভাবতেই পারতাম না যে Correct. রোবোটিক সার্জারি হয়। এটা হচ্ছে আজকের দিনে টার্গেটেড রেডিয়েশন থেরাপি দেওয়া হয়, हाँ, तो এগুলো ये কিন্তু আজকের দিনে শুরু হয়েছে।
करेक्ट, तो यही है ডেভেলপমেন্ট बात। হচ্ছে ওখানে প্রচুর तो কাজ मेडिकल হচ্ছে एडवांस में वही डिफरेंस है। नहीं देखिए आप फिजिकल इंजीनियरिंग एडवांसमेंट जो रहेगा वो उसका जो टर्न अराउंड टाइम रहेगा वो भी 20 ईयर्स 30 ईयर्स ऑन द लाइन रहेगा। जैसे एक रूल है कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग में कि एवरी 5 ईयर्स और एवरी 10 ईयर्स आपको कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर डबल हो जाएगा। देयर सम लॉ इज देयर। लेकिन मेडिकल में ऐसा नहीं है। मेडिकल में इट्स नॉट अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इट इज अ इंक्रीमेंटल ग्रोथ। क्योंकि कोई भी नया ट्रीटमेंट आएगा उसका हमको डिफरेंट पॉपुलेशन सेट्स में हमको इवेल्युएट करना पड़ता है कि वो हर पॉपुलेशन सेट में इफेक्टिव है कि नहीं। तो जैसा नीलोत्पल जी ने बोला, नाउ वी जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी आया है, जो टारगेटेड रेडिएशन आया है, द डेवलपमेंट स्टार्टेड लॉन्ग टाइम बैक इन 1980s। तो 1980s में जो चीज इवॉल्व हो रही थी वो आज हमको 2010 या 2020 में हमको रिजल्ट दे रही है, जिससे हमें पता चला है कि ये बेटर है कंपेयर टू कन्वेंशन सर्जरी और कन्वेंशन रेडियोथेरेपी। क्योंकि जो टर्न अराउंड टाइम ऑफ रिसर्च इन मेडिकल इज वेरी हाई। यू हैव टू वेट फॉर 5-10 ईयर्स टू सी कि आपका जो आप ट्रीटमेंट आप चेंज कर रहे हो उससे कहीं साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है या कोई और कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जब हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इसका रिजल्ट अच्छा है, तभी वो मार्केट में आता है। So because the turnaround time is high, so that's why the research in medicine appears slower than other fields. कि आप फिजिक्स में देखिए, जैसे इंडिया का स्पेस प्रोग्राम started in 1960s. Now we are at par with China, and maybe in another 15-20 years we might be exceeding US also. So medical में, but the breakthroughs which are happening are more happening in European countries क्योंकि उनको लीड टाइम काफी ज्यादा मिला है। और उनके यहाँ जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं रिसर्च के, वी हैव नॉट येट कम टू अ स्टेज वेयर वी कैन स्टार्ट इनिशिएट दोज रिसर्च प्रोग्राम्स इन एट आवर लेवल। तो इसलिए वो इंक्रीमेंटल ग्रोथ थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन अभी जो एफडी अप्रूव्ड मेडिकेशन या अप्रूव्ड ट्रीटमेंट मोडेलिटी है, यस वी आर एट पार विद देम। कि आप देखेंगे कि अगर उनका जो लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर में जो फैसिलिटीज है या कैंसर सेंटर में जो फैसिलिटीज अवेलेबल, द सेम फैसिलिटीज अवेलेबल इन आवर कंट्री ऑल्सो। सो देयर इज अ कंपोनेंट इन मेडिसिन कि आप रिसर्च ओरिएंटेड है कि आप ट्रीटमेंट ओरिएंटेड है। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड है, then the lag period for you to convert your research into treatment is very high. Whereas if you're treatment oriented, then you can get the best possible treatment at your facility and provide it to your patients. Maybe at the initial stage आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट हाई रहेगा, लेकिन जैसे आपने बोला कि पहले MRI एक्सरे अवेलेबल नहीं था लेकिन अभी काफी जगह अवेलेबल है, तो वैसे ही वो कॉस्ट, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो कॉस्ट प्रोहिबिटिवनेस चला जाता है और इट इज अवेलेबल एट अफोर्डेबल कॉस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये तो एकदम बात सही है। और आज का दिन में तो जो मूड आया है, आज का दिन में मूड है फिजिकल, मतलब फिजिकल एंड डिजिटल, एक कॉम्बिनेशन ऑफ तब चल रहा है कि आज यूएस में एक डॉक्टर बैठा हुआ है और कलकत्ता में उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है कि ऑपरेशन थिएटर में चल रहा है उसका Correct. डायरेक्शन में, जो पहले नहीं होता था। करेक्ट, जो आज का दिन में ये जो फिजिकल कॉम्बिनेशन है, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन, हम लोग कोविड में देखा है टेलीमेडिसिन हाँ। का क्या यूज था। हाँ, तो वही बोल वो रहा हूँ ना, बट जो टेलीमेडिसिन आप आज जो देख रहे हैं, एक्चुअली इसका रिसर्च काफी पहले से चल रहा था। जो आप रोबोटिक सर्जरी जो आप आज देख रहे हैं जो है हो रही है कि आप यूएसए में या बॉम्बे में के सर्जन इज ऑपरेटिंग इन दिल्ली और समवेयर, तो ये रिसर्च जो हुआ है काफी पहले से हुआ है, आपको उसके आउटकम्स आज दिख रहे हैं। नहीं, लेकिन एक्चुअली डॉक्टर साहब, हम लोग का जो चाहत होता है, जो हम लोग का जो नेसेसिटी है, जो जैसे आज हवा दफ्तर है जो फोरकास्ट करता है कि आज 2 दिन पहले ही बोल देता है कि इसमें तूफान आएगा, इतना स्पीड यही है, तो प्रेडिक्शन जैसे मॉडल वो बोल पाते हैं, तो ये आप लोग का भी वो ऐसा हवा दफ्तर बनाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, जे यही होने वाला है। तो आप लोग तैयार रहिए, आपको ये वही करना मैंने वही पड़ेगा। बताया ना आपको, तो वही उसको बोलते हैं नोमोग्राम्स हाँ, बोलते हैं, प्रिडिक्शन मॉडल बोलते हैं। हाँ, तो जैसे तूफान आने वाला है, ये आप हाँ, रीड करते हैं, ये देखे कि आपको सैटेलाइट इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एरिया कहाँ पर है, वो कितना दूर है। हाँ, उससे आप प्रिडिक्शन करते हैं कि कोलकाता में वो तूफान कब आएगा और कब आपको बारिश और ये मिलेगा। लेकिन यस, उसके लिए आपका वेरिएबल एक चाहिए, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिस्टेंस, उसका प्रेशर कितना है, विंड स्पीड कितना है। तो जब आप ये यस, इनपुट डालेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो ये रिलेटिवली मतलब कंपेयर टू मेडिकल, इट इज रिलेटिवली रीजनेबली अ सिंपलर मॉडल ऑफ प्रिडिक्शन। और क्योंकि इतने तूफान आते रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो तूफान रहेगा वो एक ही टाइप का रहेगा, जैसे आप सी में तो हरिकेन आएगा, लैंड में रहेंगे तो टोर्नेडो आएगा। यस, करेक्ट। तो हरिकेन आएगा, टोर्नेडो आएगा, उसका क्योंकि फिजिक्स और इट फॉलोज द सेम लॉ
कि फिजिक्स का लॉ चेंज नहीं होता है कि वो एग्जैक्टली इतने स्पीड से जा रहा है तो इतने स्पीड में जाएगा। जैसे अगर उसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर तो 10 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। एग्जैक्टली अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन में फिजिकल लॉज हमेशा अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ चीजें रहती हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अल्टीमेटली जो चेंज आता है जिसके हिसाब से कैंसर ग्रो या कोई बीमारी हो रही है, इट इज एट अ सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल पे कितने चेंजेस आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी तेजी से प्रोग्रेस करेगी। तो क्योंकि अभी हमारे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है कि हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सके कि आपको सेलुलर लेवल पे चेंज कितना है, तो इसलिए हमारे प्रिडिक्शन मॉडल्स आर नॉट वर्किंग टू दैट एक्सटेंट कि हम आज आपको बोल देंगे आप 5 साल में आपका कितना आउटकम रहने वाला है। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं ओवर अ पीरियड, यस इट इज गोइंग टू इम्प्रूव, क्योंकि अभी जैसे आप बोल रहे हैं हम कैंसर में भी और बाकी बीमारियों में नोमोग्राम्स आर बीइंग रिसर्च, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको। तो आप जो बोल रहे हैं कि 2 दिन 2 दिन में इनपुट करके कि आपको 5 years नेक्स्ट 5 years हाउ यू आर गोइंग टू बी, so that may take around 10 to 15 years also, but it is going to come, don't worry about that. तो आज का तो कैंसर का बेसिकली जो लेडीज लोग के लिए वो जो स्टूडेंट लाइफ है जिसका उम्र 9-10 ईयर्स है वहीं से उसका आज तो बहुत कुछ निकल गया तो उसका फ्यूचर प्रोटेक्ट हो रहा है जो पहले नहीं Correct. था Correct. जो पहले नहीं था। Correct. महिला के लिए तो प्रोटेक्ट हो गया लेकिन पुरुषों के लिए नहीं, कोई प्रोटेक्शन अभी हुआ नहीं है। क्योंकि आपको कैंसर होगा ही नहीं ना जी बिकॉज आपके पास सर्विक्स नहीं है तो आपको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। नहीं जो वैक्सीन निकला है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। हाँ तो वो जो वैक्सीन है वो केवल एक टाइप के कैंसर को प्रिवेंट करता है, ऐसा नहीं कि वो वैक्सीन से महिलाओं को कैंसर हो नहीं सकता है। वो जो वैक्सीन है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करेगा, लेकिन अदर कॉजेज की वजह से अगर सर्वाइकल कैंसर होगा तो वो उसको प्रिवेंट नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। तो अगर आप ये सोचे कि क्योंकि फीमेल्स को इंजेक्शन मिल गया तो उनको कैंसर होने का संभावना शून्य हो गया, ऐसा नहीं है। तो मैं बोला आपको समझना पड़ेगा कि कोई प्रिवेंटिव मेजर जो है ना उसका वैल्यू तब है जो जब वो मास स्केल पे लगाया जाए तो उससे मैक्सिमम लोग प्रोटेक्ट हो जाए। जैसे आज भी हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ही है। इसलिए अगर हम उसे प्रिवेंट करते हैं तो हमारा एजम्पशन है कि हम सर्वाइकल कैंसर के रेट्स कम कर देंगे, लेकिन जीरो नहीं कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर जीरो नहीं होगा भले ही आप वो वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि दूसरे कॉजेज भी हैं जिनसे आपको सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो अगर आप उस चीज के लिए प्रोन है तो भी आपको फ्यूचर में चेकअप तो कराते ही रहना पड़ेगा। हाँ उसमें ये रहेगा कि अगर प्रोबेबिलिटी, जैसे आप ट्रैफिक में अभी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया हेलमेट पहनने का, तो हेलमेट पहन रहे हैं इससे ये थोड़ी कि आपका डेथ हमेशा प्रिवेंट ही होने वाला है। इट इज एन एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशन कि आपको हेड, अगर आपका एक्सीडेंट होता भी है तो हेड इंजरी का चांस कम करता है, यस जीरो नहीं करता है। कि यस जस्ट बिकॉज आपने हेलमेट पहन लिया तो आप 200 की स्पीड से बाइक चलाएंगे, वो तो कोई गवर्नमेंट नहीं बोलने वाली, क्योंकि वो कम करेगा जीरो नहीं करेगा। तो वैसे ही वैक्सीन जो है इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कैंसर दैट इज सर्वाइकल कैंसर, लेकिन वो जीरो कभी नहीं होगा। तो इसलिए जो पॉपुलेशन बेस्ड स्ट्रेटेजी है कैंसर प्रिवेंशन के, उसमें ऐसे इंटरवेंशन बहुत रेयर होते हैं। क्योंकि अभी जैसे सर्वाइकल कैंसर है उसमें हमें पता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अभी मोस्ट कॉमन है, लेकिन हो सकता है 15-20 ईयर डाउन द लाइन जब ये वैक्सीन बहुत सब लोग लेने लगेंगे तो सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नहीं रहेगा, फिर दूसरे कॉजेज रहेंगे। तो तब भी आपका स्क्रीनिंग मेथड तो आपका सेम ही रहने वाला है। द पेप स्मीयर जो 50-100 साल पहले जो बना है वो आपको करवाना ही पड़ेगा। तो अभी वो भी तो म्यूटेट हो जाएगा एक्चुअली हो वायरस सकता का। है वैक्सीन में एक्चुअली वायरस का म्यूटेट होना, जो वायरस रहता है वो ऑलरेडी इनएक्टिव वायरस रहता है, तो उसका म्यूटेट होने का चांसेस बहुत रेयर है अनलेस इट्स अ लाइव वैक्सीन। और क्योंकि और दूसरी बात जो ये एचपीवी वैक्सीन है दिस इज रिलेटिवली सेफर, मतलब इसका सी गवर्नमेंट स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट कोई भी ट्रीटमेंट को तब तक वैलिडेट नहीं करती जब तक उसका आप एफिकेसी ट्रायल ना दे दें। बहुत रेयरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी कोई ट्रीटमेंट जिसका एफिकेसी ट्रायल और सेफ्टी ट्रायल हुआ नहीं है और वो बाकी कंट्रीज में अप्रूव ना हुई हो। तो उस मामले में वी आर आई थिंक इवन बेटर देन सम अदर कंट्रीज, कि जहाँ पे ट्रायल के लिए जस्ट बिकॉज आपने थोड़ा सेफ्टी ट्रायल दिखा दिया तो आपका ट्रीटमेंट मोडेलिटी अप्रूव हो जाएगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। और उसकी वजह से जब एचपीवी का वैक्सीन एक्चुअली 15-20 ईयर्स बैक आ गया था, मास प्रोडक्शन और मास अप्रूवल तभी मिला जब उसने रिजल्ट दिखाया है। ओके बहुत कुछ आप लोग हम लोग आज जानकारी मिल गया आपका पास बहुत कुछ वही एम था मीटिंग का। हाँ तो यही है। तो मेरा ख्याल से
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, हम लोग क्विट करना है, बहुत टाइम हो गया। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर? किसका कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, हम लोग क्विट करेंगे। मेरा ख्याल से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन है। नहीं। क्वेश्चन है वो सब सुन लिया हम लोग, तो उसका जो बोल दिया। क्वेश्चन करने के लिए भी तो जानकारी होना चाहिए, तब तो क्वेश्चन कर पाएंगे। प्रॉब्लम तो ऐसा ही नहीं है। रहता, ठीक है, डाउट सबके हम्म, रहते हैं। वैसे हाँ मैं ओपनिंग में तो मैं सबको ही बोलता हूँ, आपके तो क्वेश्चन नहीं तो नेक्स्ट टाइम यू राइट एंड टेक कीप, कि आपको जब यस अगली बार मौका मिले तो आप वो पूछ सको। क्योंकि कई बार ऐसा है, जब आप बात कर रहे होते हो तो आपको स्ट्राइक नहीं होता, लेकिन आप जब उसके ना घर पे बैठ के सोचते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये पूछ लेना चाहिए था। तो एग्जैक्टली। हमेशा एक आदत आदत बना के रखिए, आपके डाउट दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो नोट करके रखिए, ऐसी जगह नोट करके रखिए जो इजीली एक्सेसिबल हो। आजकल स्मार्टफोन आई थिंक सबके पास रहते हैं। तो यस एनी हेल्थ क्वेश्चन यू हैव यू कैन नोट इट डाउन, so नेक्स्ट टाइम जब आपके डॉक्टर के पास जा रहे हैं कोई भी कंसल्टेशन के लिए, एंड इफ ही इज क्वालिफाइड इन, यू कैन आस्क हिम दैट क्वेश्चन। एग्जैक्टली। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सर, आज का दिन में आप लोग का, देखिए आप लोग का वजह से हम लोग अभी जिया है, जीते रहेंगे। आप लोग जितना दिन हम लोग का साथ है, हम लोग निश्चिंत बाकी जो लाइफ है वो निभाएंगे। तो तमलदा और सुजन, प्लीज क्लोज द टुडे सेशन, एंड नीलोत्पल ऑल्सो। আমার তরফ থেকে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। আজকে এই প্ল্যাটফর্মটা আমরা পেয়ে আমরা যেভাবে মানে অ্যাওয়ারনেস, যেটা আমাদের হসপিটালেরও মোটো, আমরা যেটা চাইছি যে শুধু ট্রিটমেন্ট নয়, সাথে সাধারণ মানুষও আমাদের শরীর সম্বন্ধে, রোগ সম্বন্ধে অ্যাওয়ারনেস হোক, সেটা আমরা হয়তো কিছুটা হলেও পৌঁছাতে পারলাম। আগামী দিনে আরো যেখানে প্রয়োজন থাকবে আমরা পৌঁছাবো। এবং যে কোনো সময় যে কোনো সমস্যা, যে কোনো এমার্জেন্সি, এবং যেটা স্যার রোজ একটু আগে বলছিলেন যে কোনো প্রশ্ন যদি থেকে থাকে, কোনো প্রশ্ন থেকে থাকলে প্রশ্ন, আমি তো অলরেডি চ্যাট বক্সে আমার নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা প্রশ্ন আমায় পাঠাতে পারেন। সেই প্রশ্নর আবার সঠিক উত্তর আপনাদের কাছে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে একদম আপনাদের প্রশ্ন অ্যাড্রেসও করা হবে। হ্যাঁ, তো এই প্রশ্ন করবার জন্য বা জানবার জন্য, তার জন্য তো পয়সা লাগে না তো। হয়তো কেউ হয়তো বলতে এটা লাখ পারে টাকার প্রশ্ন, এটা লাখ কেউ টাকার প্রশ্ন। কেউ বলতে পারে, আরে দাদা আপনাকে প্রশ্ন করব, যেমন যে কোনো একটা বড় লয়ারের কাছে গেলে বা একটা কনসালটেন্সি ফিজ নেয়, তো হ্যাভ এনি কনসালটেন্সি ফিজ ফ্রম ইউ, এটা ক্লিয়ার করা উচিত। কারণ রাত 1:30টার সময় কেউ ফোন করে জানতে চাইছে কোনো কিছু, সে হয়তো আছে রাজস্থান, হয়তো বা কাশ্মীর, সেখানে গিয়ে হ্যাঁ, প্রবলেম ফেস করছে, সে তখন ফোন করছে। তো ফোন করার আগে 100% হ্যাঁ না, সেই সেই সময় সময় মানে কোনো অসুবিধা নেই। না, এখন যে যেমন আমাদের ভারতবর্ষের যে কোনো স্থানে যে কোনো জায়গায় গিয়ে মেডিকেল এমার্জেন্সি তৈরি হলে মানে ফিল ফ্রি টু কল মি, কোনো এক্স্যাক্টলি সমস্যা নেই। আমরা একটু হিউমারাসলি বলছি, যেমন আমাদের ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা যে ক্যারিকেচার ছিল, তার মধ্যে ও যখন কনসালটেন্সি করতো, ও যেই আসতো বলতো আগে টিনের বাক্সে 12 টাকা, সেই মানে বিষয় নেই। 12 টাকা দেওয়ার পরে কনসালটেন্সি আফটার দ্যাট। তো টিনের বাক্সে 12 টাকা, এরকম গল্প তো নেই এখানে, যে একদম নেই, নীলোৎপলকে আগে টিনের বাক্সে 12 টাকা দেওয়ার পরে তারপরে কিছু জানা যাবে, এরকম ব্যাপার নেই তো। একদম নেই। এই ব্যাস জন্যই ক্লিয়ার। আমি শুরুতে বললাম, আমরা ফিল করি যে ইট ইজ অলসো মাই ফ্যামিলি। তো ফ্যামিলি এক্স্যাক্টলি। মেম্বারদের মধ্যে এই জিনিস থাকা কখনোই কাম্য নয়। হুম। না সেটাই আর কি ক্লিয়ার করে দেওয়া, কারণ লোকের তো ভুলভ্রান্তি হয় অনেক কিছু, সেই জন্য আগে যে যে এইটা কোনো সমস্যা নেই, কোনো চাপ নেই, সবার জন্য ওটা রয়েছে। কারণ আর প্রবলেম যখন আসবে সেটা অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি আসবে, কোথায় আসবে কেউ জানে না। সেই সময় অ্যাসিস্ট্যান্সটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য, যে হসপিটালের কাছে আছে, বাড়ির কাছে আছে, তার তো কোনো সমস্যা নেই। যে দূরে আছে, সেই সময় যে ক্রাইসিসটা হবে তখন কি করে হ্যান্ডেল করবে, দ্যাট ইজ আওয়ার মোটো। তো একদমই তাই, একদম সঠিক কথা। হ্যাঁ, যখন সমস্যা হবে শুধু ফোন করবেন আমাকে বা গৌতম বাবুকে জানাবেন, আমরা সবসময় রিঅ্যাক্ট করবো, কোনো অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে And মানে এটা সার্ভিস। মানে একদম ফ্রি অ্যাসিস্ট্যান্ট, কোনো সমস্যা নেই, এর জন্য হ্যাঁ কোনো পয়সা লাগে না। হ্যাঁ, একদম আর এই সার্ভিসটা হচ্ছে 24/7/365। একদম হেলথ সেক্টরে তো এটাই ব্যাপার। हेल्थ হ্যাঁ, सेक्टर এখানে में तो এটার কোনো ওই মানডে সানডে ছুটির হলিডে এসব কিছু হয় না।
তো সেই জন্য আমার মনে হয় এইটার জন্য আমরা যে শপথটা নিয়েছি, আগামী দিন আমরা এই কাজগুলো করব। ফিজিক্যাল ক্যাম্প আমরা করব, আমাদের জয়েন্ট প্রোগ্রাম করব, যেখানে মানে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলথ দুটো আমরা একসঙ্গে কাজ করব। যখনই আমরা করব জয়েন্টলি সবকিছু, যেখানে হেলথ এবং ওয়েলথ দুটো প্রোগ্রাম আমরা একসঙ্গে করব। এই বলে আজকে আমরা আমাদের এই আবার ডাক্তারবাবুকে নমস্কার জানাই, কারণ Thank you. আপনার হ্যাঁ, উইদাউট ইউ দিস ডে ইজ নট কমপ্লিটেড, বিকজ টুডে ইজ ডক্টরস ডে, অ্যান্ড ইন ইন্ডিয়া না, অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, আওয়ার ডক্টর বিধান রায়, who Yes. is the person only see and diagnosis. That is that people we need, that type of doctor. He is a scanner, only seeing and diagnosis. Yes. That type of doctor we needed. Correct. So might be it will come in future. And thank you all again. Thank you very much. Again, thank you all. Today I am closing today's session. Thank you. Good Thank night, everyone. Thank you for the opportunities. Thank you. Thank you. Good night. Good Good night. night, everyone.